آج میرے پاس ایک سوال ہے کیونکہ ہمیشہ شعیب کے پاس ایک سوال ہوتا ہے تو میں نے کہا آج میں آپ سے ایک سوال کرتی ہوں. پوچھئے. آپ شادی شدہ ہیں؟ Of course I am. یقیناً. سوال ابھی آنا ہے. اچھا, جب آپ کے لیے جب گھر والوں نے بات کرنی شروع کی کہ نہیں اب شعیب کو شادی کرنی ہے تو دماغ میں سب سے پہلے کیا ڈر آیا تھا, کیا خوف آیا تھا؟ Too early to get married. Why? مجھے لگتا تھا کہ فائنینشل اسٹیبلٹی والا ایک فیکٹر اس ٹائم زیادہ کنسرننگ تھا, لیکن اچھا اس میں پھر کاؤنسلنگ میری خالہ نے میری کی. اچھا. انہوں نے 5 منٹ میں کاؤنسلنگ میری کر دی. انہوں نے کہا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں نا, فائنینشیل یعنی جو جاب کی, یہ سب سیپریٹ ہیں, اور جو شادی کا میٹر ہے یہ انٹائرلی سیپریٹ چیپٹر آف یور لائف ہے, تم نے اس کو مکس نہیں کرنا. اچھا. یہ سوچ کے کوئی ڈیسیژن کوئی اسٹیپ نہیں لینا کہ اچھا شادی اور اس کا کوئی لنک ہے, یہ سیپریٹ ہے. تو آپ مل کے گرو کر سکتے ہیں, لیکن عموماً اب آج کل بھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ لڑکی والوں کی ڈیمانڈس بھی زیادہ ہوتی ہیں, اور اوور آل ہماری سوسائٹی کا ایک بڑا کنسرننگ پوائنٹ بن چکا ہے, بڑا ایک کنسرن ہے جو وہ یہ کہتے ہیں کہ لڑکا اسٹیبل ہو. اب لڑکا اسٹیبل ہوتے ہوتے ظاہر ہے آج کل کے حالات کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کو ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا ہے. 30 کراس بھی کر کے کچھ لوگ اسٹیبل نہیں ہو پا رہے ہوتے, اور وہ قسمت کی بات ہوتی ہے, ہارڈ ورکنگ بھی ہوتے ہیں, لیکن وہ شادی کرتے ہوئے ڈر ضرور رہے ہوتے ہیں. ان کے اوپر بہت سارے سال میں بھی اسٹیبل آج کل ہو جاتے ہیں. وہ تو ظاہر ہے اگر اما ابا اسٹیبل نہیں, ویسے بھی اب اگر کوئی بندہ کما رہا ہے آج کل ویسے بھی دیکھتے ہیں چھوٹے یوٹیوبر بھی ہم جس طرح سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ بھی. اچھا اینی ہاؤ, تو ہمارا آج کا ٹاپک یہی ہے کہ شادی کے ٹائم پر لڑکوں کے اوپر کیا کیا پریشرز ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ شادی سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں, اور ریجیکٹ ہونے کا بھی ظاہر ہے اس لحاظ سے پریشر ہوتا ہے. تو وہ کون کون سے پوائنٹس ہوتے ہیں, کس طرح سے اس کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, کس طرح سے مینج کیا جا سکتا ہے, اسی حوالے سے بات کریں گے. ڈاکٹر فوزیہ سحر ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ, کیسی ہیں آپ؟ السلام علیکم, آپ کیسے ہیں؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. ڈاکٹر صاحبہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کے ساتھ ساتھ جتنے لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں, جتنے لڑکے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں, لڑکیاں دیکھ رہے ہیں, یا پھر لڑکوں کی مائیں بھی ہمیں دیکھ رہی ہیں, تو وہ ہمیں کال ضرور کر سکتے ہیں. آپ کو کوئی کنسرن ہے, کوئی سوال ہے, تو آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ کا مسئلہ حل بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر صاحبہ آج کل کے دور میں یہ پریشر کتنا نقصان دہ ہے ینگ جنریشن کے لیے, اگر دیکھا جائے مینٹلی, اگر دیکھا جائے کس طرح سے ان کے لیے ایک مشکل کھڑی کرتی ہے؟ ایسا ہے بیٹا کہ چونکہ اب زندگی کی بہت سی قدریں بدل گئی ہیں. ایک زمانہ تھا کہ صرف ایک اچھا شریف خاندان کا لڑکا چاہیے ہوتا تھا جو برسر روزگار بھی ہو, اتنا کافی ہوتا تھا ماں باپ کے لیے, لڑکی والوں کے لیے. اس کے بعد اب جو یہ تو تھا ایک باہر سے ایک جو کرائٹیریا تھا ماں باپ کا, لڑکیوں کے ماں باپ کا, کہ لڑکا اچھے خاندان سے ہو, شریف ہو, برسر روزگار ہو. اور لڑکوں کہتے ہیں نا, لڑکوں کی خوبصورتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ ان کی نوکری دیکھی جاتی ہے, ان کی جاب دیکھی جاتی ہے, ان کی تعلیم دیکھی جاتی ہے. لہٰذا وہ تو ان کو ضرورت کوئی پریشانی نہیں ہوتی تھی. اب قدریں اتنی بدل گئی ہیں کہ اب میں نے یہ دیکھا ہے کہ میں جس سرکل میں ہوتی ہوں, میں پروفیسر ہوں یونیورسٹی میں, اور میں ایک سوشل سرکل بھی ہے میرا. بہت سی مائیں پریشان ہو رہی ہوتی ہیں کہ پلیز کوئی بچے کے لیے رشتہ دیکھیے, بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیے. لیکن جب ان کو کسی لڑکے کا رشتہ بتایا جاتا ہے دائیں بائیں سے, تو اتنے زیادہ کوسچنس کرتے ہیں, اتنی زیادہ ان کی ڈیمانڈس ہوتی ہیں کہ وہ ماں باپ جو بڑی لجاجت سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری بیٹی کے لیے رشتہ دیکھیں, وہ ایک دم سے اونچی پہاڑ پہ جا بیٹھتے ہیں. اب ان کو یہ ہوتا ہے کہ اچھا لڑکے میں یہ ہے. تو یہ باتیں ہوتی ہیں جن سے کہ ہم آج کل ایک تو انتخاب میں بہت مشکل ہم کر رہے ہیں کھڑی. دوسری بات یہ ہے کہ جو لڑکے ہیں وہ اس کے ساتھ تو پورا خاندان چل رہا ہے نا. دیکھیں آپ کی بیٹی نے تو رخصت ہو کے اپنے سسرال میں چلے جانا ہے, لیکن لڑکے کے ساتھ پورا ایک خاندان ہے, اس کے ماں باپ ہیں, بہن بھائی ہیں, اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ لڑکے پہ ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. تو ایسے ذمہ داریوں سے جو نبرد آزما لڑکے ہوتے ہیں وہ ان کو ان ذمہ داریوں کو پورا کرتے کرتے بھی ایک خاص عمر تک آ جاتے ہیں, اور پھر ان کی انسیکیورٹی بڑھ جاتی ہے کہ اب شاید میں ریجیکٹ نہ ہو جاؤں اس عمر میں, یا اگر اس کی کوئی 4-5 بہنیں ہیں تو لڑکی والوں کو یہ ہوتا ہے کہ جی اچھا وہ تو بڑی لمبی فیملی ہے, اچھا لڑکے کی شادی ہو بھی رہی ہے تو 4 بہنیں بیانی ہیں. یہ تو دیکھیں سارا لڑکی کے پرسپیکٹیو سے ہم ڈسکشن کو کر رہے ہیں. اگر ہم بالکل اپوزٹ سائڈ پر آئیں, اب ایک انڈیویجول, ایک لڑکا ابھی جب اس کے فیملی نے رشتہ لے کر جانا ہے یا کہ وہ چلے گئے ہیں, اس وقت اس پہ جو ایک پریشر ہے, ایک یہ کہ ریجیکٹ نہ ہو جاؤں, دوسرا اچھا پتہ نہیں کیا کیا سوال ہوں گے جس کے جواب دینے پڑیں گے. پہلے تو لڑکی ہے نا, لڑکی کو دیکھنے گئے, اچھا جی وہ ٹرالی لے کر آئیں, وہ بیٹھیں, آپ نے لڑکی کو دیکھا, لیکن اب یہ کہ لڑکے کو بھی یہ کنسرن ہوتا ہے کہ اچھا میرے بارے میں بہت سے سوال کیے جائیں گے, میری جاب سے متعلق, ہو سکتا ہے اگر ہائٹ کم ہے تو پوچھ رہے کہ ہائٹ کم کیوں ہے, یو نیور نو. بال نہیں ہے تو پوچھ رہے کہ جی بال کیوں نہیں ہے. اب ذرا بڑے کانشیس ہو گئے ہیں. تو وہ جو لڑکے پر اس وقت ایک پریشر ہے, وہ فائنینشیل پریشر کے علاوہ کیا کیا پریشر ہے؟ فائنینشیل پریشر تو ایک سب سے بڑا پریشر ہے, ایبسلیوٹلی اس کو تو آپ بالکل نظر انداز کر ہی نہیں سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ پریشرز بتا رہے ہیں نا, یہ بہت چھوٹے چھوٹے پریشرز ہیں.
ये एक इंडिविजुअल के प्रेशर्स हैं। जैसे किसी की हाइट कम है तो वो परेशान होगा कि ऐसा ना हो कि मुझे रिजेक्ट कर दिया जाए, या किसी के बाल आप बता रहे हैं कि कम है या कुछ सांवला है। ये मैंने एग्जांपल्स दी ना सर, वो भी इसलिए कि हम ये देखते हैं कि लड़के भी अब उतने ही परेशान होते हैं रिश्ते के उस टाइम पर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आपको बताती हूँ, इसलिए कि जो लड़कियों को तो अब नो मेकअप लुक की एक एडवांटेज मिल गया है ना, वो तो 2-3 घंटे में नो मेकअप लुक करवा के आ जाती हैं और बड़ी मासूम सी लग रही होती हैं बैठी हुई। लड़के बेचारे जो हैं वो अगर सांवले हैं और अगर ज़रा सा उन्होंने चेहरे पर भी कुछ करवा लिया तो पहली नज़र में ये भी देख लिया जाता है कि अच्छा क्या ज़नाना सी शक्ल बना के आके बैठा हुआ है, ठीक है ना। अच्छा, मैंने एक बच्चे को देखा मेरी फैमिली का, वो उसके रिश्ते के लिए देखने आ रहे थे, तो जनाब वो कभी एक शर्ट पहन के आता था, खाला ये ठीक है, आंटी ये ठीक है, कभी दूसरी ये वाली ठीक है। तो मतलब लड़के भी बेचारे इंटरव्यू के लिए या बर दिखावे के लिए या उनके अंदर भी बहुत सारी, और वही बात है दोनों की तरफ नहीं होना चाहिए। हाँ, लड़कियों को भी अगर इस तरह से ऑब्वियसली एक प्रेशर होता ही है कि वो फिर बन सवर के आती हैं, नो मेकअप लुक भी बेशक 3-3 घंटे के करवा के आती हैं, क्योंकि जाहिर है ये प्रेशर्स दोनों तरफ हैं। लड़कियों की तरफ पहले हम देखते थे कि ये प्रेशर्स होते थे, अब लड़कों की तरफ है, जो कि दोनों तरफ एक गलत प्रेशर है जो कि नहीं होना चाहिए। अच्छा जी, इस वक्त कॉलर हमारे साथ एक मौजूद है, मोहम्मद रिजवान। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम। रमजान साहब शादी हो गई? हाँ जी सर, शादी होगी मेरी। अच्छा, तो आप कुछ सवाल करना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं, या हम आपसे सवाल कर लें? एक आप कर लो सवाल। शादी आराम से हो गई थी, रिश्ता आराम से तय हो गया था? अल्हम्दुलिल्लाह सर। कोई परेशानी थी उस वक्त? कोई ऐसा सवाल था लड़की वालों की तरफ से, या आपको लगता था कि अच्छा पता नहीं कैसे मैनेज होगा, कैसे जिम्मेदारी उठाऊंगा? कोई ऐसा प्रेशर था आपके ऊपर? नहीं, कुछ भी परेशान नहीं थी। 1996 में हमारी शादी हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा कोई रिवाज नहीं था, कोई इस तरह की पाबंदी नहीं थी कि आप इतने सोना बनाओ, इतनी कुछ चीजें बनाओ। लेकिन फिर भी अल्लाह का शुक्र, आज के दौर में हमें बहुत टेंशन हो रही है बच्चों को। अच्छा, बच्चों की? अच्छा, क्या टेंशन हो रही है, क्या प्रेशर आपको लगता है कि आपके बच्चों के ऊपर है इस वक्त? प्रेशर बेटा यही है कि ये जो कह देते हैं जी 5 मरले जमीन के लगाओ, ठीक है, फिर उसके बाद इतना जेवर 10 तोले जेवर हो, 50 लाख रुपए हक महर हो, तो ये इस तरह का शादी बहुत ना निकाह मुश्किल होता जा रहा है। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इस पर डॉक्टर साहब आप प्लीज़ आप राय भी दीजिएगा। ये वाकई कुछ पेरेंट्स का कंसर्न ये होता है लड़के वालों का कि जब रिश्ता हो रहा होता है तो लड़की वाले कहते हैं जी जेवर भी आप दे दें। चलो जेवर वैसे भी लड़की का ही होता है, बट इन केस वो कहते हैं जी 5 मरले या 10 मरले या कनाल ज़मीन भी उसके नाम कर दें, घर भी उसके नाम कर दें। हक महर इतना ज़्यादा मांग लिया जाता है कि मुश्किल लगता है फिर। और ये लड़की वाले ये नहीं सोचते कि वो हक महर की सूरत में अपनी बेटी के गले में एक तोक डाल रहे हैं कि खुदा न खास्ता अगर आगे चल के खुदा न खास्ता बेटी की ज़वाजी ज़िंदगी खुशगवार नहीं है तो कई लड़कियां फिर इसलिए बैठी रह जाती हैं, उस सख्तियों को बर्दाश्त करती रह जाती हैं। वो उससे निकलना चाहती हैं लेकिन वो उतना हक महर है नहीं लड़के को देने के पास देने के लिए। और इसी तरह अगर लड़का समझता है कि वो वो मिलकर एक फ़ैसला करना चाहते हैं लेकिन हक महर इतना ज़्यादा लिख दिया जाता है कि उस तकलीफ दे सूरत हाल से निकलने का रास्ता ही महसूस होकर रह जाता है। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, हमने कदरें बदल दी हैं, हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं। माशरे से की जो कदरें हैं वो इतनी बदल गई हैं कि एक ज़माने में बुज़ुर्ग कहा करते थे कि जो बेटी है, बहू आ रही है हमारी, वो हमारे घर की बुनियाद है, न्यू है, और वो उस बुनियाद को लेके चलेगी और हमारी आगे। अब क्या होता है कि वो जो बुनियाद बनना चाहती है जिस ख़ानदान की, वो पहले उस बुनियाद को जांचती है कि आया जिस घर में मैं जा रही हूँ उसकी बुनियाद कैसी है, और वो मादियत के हवाले से। मैं आपको एक बताती हूँ, बहुत ही मेरे लिए बहुत ही एक अचंभा था कि एक ऐसी फैमिली जिनकी 5-6 बेटियाँ थीं और बहुत ही लोअर मिडिल क्लास से उनका ताल्लुक था, बहुत सफ़ेद पोश लोग थे, यहाँ तक कि उन बच्चियों की तालीम भी यहाँ वहाँ से लेके डोनेशंस वगैरह पर वो फीसें उनको देते थे, सब कुछ करते थे। वालिद की बहुत कम तनख्वाह थी। अच्छा, उसके लिए मेरे पास एक जानने वाले थे, उनके वालिद की डेथ हो गई और बेटे ने अपने माँ माँ का बहन भाइयों का साथ दिया, 2 बहनों की शादियाँ की, 2 भाइयों की। 32 साल का हो गया, अब उसकी शादी की बारी थी। अब जब घर वाले ने कहा कि अब हम अपने भाई को भी एक अच्छा खुशगवार माहौल देना चाहते हैं, तो मेरे ज़हन में फ़ौरन वो फैमिली आई। मैंने कहा इनकी 5 बेटियां हैं, अच्छी कुछ शक्ल हैं, लेकिन इतने उनको तो ये घर बड़ा सूट करेगा, एक वेल ऑफ मतलब एक मतवस्त तबके के लोग। मैंने फ़ौरन वो उनको जाके बताया कि सिलेक्ट रिश्ता है।
आप यकीन मानिए कि वो माँ बाप जो अपनी बच्चियों के लिए डोनेशन ले कर फीसें देते थे, जिनको यूनिफॉर्म प्रोवाइड किया जाता था यहाँ वहाँ से, जिनके पास मेडिकल फैसिलिटी कोई नहीं थी और लोग उनके इलाज करवाते थे, उनकी मैं हैरान हो गई उनको देख के कि उन्होंने इतनी डिमांड करना शुरू कर दी कि जी घर नहीं है, लड़के का घर नहीं है। आप देखें तो ये ऐसी डिमांड्स जिस पे फिर ज़ाहिर मामला ख़राब होते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं मोहम्मद रियाज रावलपिंडी से। अस्सलाम वालेकुम जी, रियाज साहब क्या कहना चाहेंगे? रियाज साहब साथ मौजूद हैं? लाइन ड्रॉप होगी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक जो आपने बात की ना कि ये जो सोने वाली बात थी कि किस तरह से जेवर इतना देना चाहिए या हक महर की बात है इस तरह से, अच्छा पहले जो है वो लड़की वाली चीज़ डिमांड जरूर कर रहे थे। अब ज़ाहिर हम हमेशा ये भी नहीं कह सकते कि लड़के वाले गलत होते हैं लड़की वाले ठीक होते हैं, खामियां दोनों तरफ से होती हैं। बिल्कुल। तो ये जो डिमांड्स होती है ज़ाहिर लड़के को उस वक्त पूरी तो करनी पड़ती है, वो डिमांड्स वो कर लेते हैं। अब वो किस तरह से करते हैं, कर्जे देकर करते हैं या अपनी कोई जायदाद इस तरह की है उसको बेच कर शादी धूमधाम से एक दिखावे के लिए चीज़ हो जाती है। लड़की के पास अगर वो चीज़ होती भी है तो आगे चलकर उस लड़के के साथ गुजारा उसने करना है, जिंदगी उसने गुजारनी है। तो अगर लड़का कर्जे के बोझ तले दबा रहेगा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसे शादी धूमधाम से करनी थी, वो सारी चीज लड़की के पास होते हुए भी नहीं है क्योंकि उस मर्द के पास ज़हनी सुकून ही नहीं है, तो फिर आपने उस जेवर का क्या करना। और आहिस्ता आहिस्ता हमने देखा कि बाद में वही जेवर बेचना पड़ रहा होता है, आधी कीमत में बिकता है, आधी कीमत पे बिकता है, लॉकर्स में पड़ा रहता है। कौन पहनता है आजकल इतना जेवर? तो कोई पहन भी नहीं सकते, मतलब पहने या ना पहने वो भी एक अलग बात होती है। बट एट द सेम टाइम मैं यही बात करती हूँ कि जब आप इतना प्रेशर डाल देते हैं और वो दिखावे के लिए जब एक चीज हो जाती है तो बाद में पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए, लड़की के पेरेंट्स को ये भी सोचना चाहिए कि एक लड़का जब कर्जे के बोझ तले दब चुका है वो क्या खुशियां देखेंगे, क्या ज़हनी सुकून मैं आपको ये बताने जा रही हूँ कि एक ज़माना वो माँ बाप जो बड़ी लजाजत से कहते हैं पहले कि कोई बताइए रिश्ता देखिए, कोई आप अपने दाएं बाएं, जब उनको कोई रिश्ता बताया जाता है तो उनकी इतनी डिमांड्स होती है कि हैरत होती है कि ये वो लोग हैं जिनकी 5-5 बेटियाँ घरों में बैठी हुई। मैं आपको एक और इसी माशरे से हम देख रहे होते हैं, मैंने कभी किताबी बातें नहीं की, लेकिन मैं ज़िंदगी के अंदर से ही आपको बताऊंगी वाक़यात अपने तजुर्बे के हवाले से, मुशाहिदे के हवाले से। मैं आपको बताऊं कि हमारे माशरे में यहाँ तक देखा जाता है कि लड़के का घर होना चाहिए। अब देखिए, एक अगर मियाँ बीवी दोनों पढ़े लिखे हैं और घर बना लेंगे, ऐसी कौन सी बात है? लड़का जहाँ पे रह रहा है वहीं बीवी को रख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि फुटपाथ पे उसको लेके जा रहा है। अब एक फैमिली अगर किराए के घर पे रह रही है तो किराया अदा करने की सकत रखती है, तो उन्होंने घर रखा हुआ है ना। लेकिन नहीं, ये देखा जाता है कि लड़के का घर होना चाहिए। दूसरी बात जो है वो ये है कि आमतौर पर जो लड़की वाले हैं वो ये देखते हैं कि जो लड़का है वो उसकी नौकरी कैसी है। बिल्कुल, एक कॉलर भी हैं। हाँ। अख्तर साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान अख्तर साहब हैं हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम, क्या पूछना या कहना चाहेंगे सर? ये जो बाकी सारी चीजें सारी ठीक है, ये जो मोबाइल की वजह से प्रॉब्लम्स आ रही है शादियों में, वो भी बहुत बड़ा मसला है। मोबाइल की वजह से शादी के मामलात में मसाइल पैदा हो रहे हैं, यही सवाल करना चाह रहे हैं आप? जी जी। मोबाइल की वजह से कैसे? थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करेंगे, इलैबोरेट करेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में आप कह रहे हैं? थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है, फौरी तौर पे माँ बाप को बता दी जाती है या फौरी तौर पे आगे से नोटिफिकेशन आ। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि थोड़े से भी प्रॉब्लम होती है तो माँ बाप को बात पहुंचे, तो बेचारों कसूर मोबाइल का तो नहीं है। मोबाइल शादी होने के बाद की बात है ना, मैं भी शादी की बात कर रहे हैं। या ये हो सकता है जब फॉर एग्जांपल रिश्ता जब होता है, रिश्ते के बाद जब आपका कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हुआ, छोटी छोटी बात आप एक दूसरे को समझ रहे हैं, अभी समझने के दौरान अगर आपने थोड़ी सी बात हुई और आपने शेयर हलाई करना भी चाहिए, मेरी तो राय है को शेयर करना चाहिए पेरेंट्स से, चाहे लड़का है चाहे लड़की है, इसमें तो कोई गलत बात नहीं है। ज़रा आपको बेहतर मशवरा बड़ों से मिल जाएगा। लेकिन शायद उनका कहने का मतलब ये है कि जब बात पर बड़े इन्वॉल्व हो जाएंगे, फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, कोई बीच में ऐसा शख्स भी होता है ना जो मामला ख़राब कर देता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और आप तो चूँकि मैरिड और आपको तो तजुर्बा भी होगा। तो देखिए, जब औरतें लड़कियाँ फ़ौरन अपने घर में सुबह शाम फ़ोन करके कि आज रात ये हुआ था, आज मुझे ये हुआ था, आज मेरे हस्बैंड ने मुझे ये कहा, मेरी सारी लड़कियाँ ऐसे करती हैं? वैसे मेजॉरिटी करती है। हमारे माँ बाप, बेटा हम जिस सेहत के लोग हैं ना, हमारे माँ बाप ने घर से जाते वक्त ये कहा था कि बेटा ये नहीं है कि तुम्हें हम घर से निकाल रहे हैं तो तुम्हारा जनाजा आना चाहिए, लेकिन उस घर को तुमने एडजस्ट करना है, उन सब ने नहीं करना है। और तुमने, वो सारे लोग तुम्हारी वजह से अपने आप को नहीं बदलेंगे, तुमने अपने आप को बदलने की कोशिश करनी है। तो बेटा बदलना तो कोई मुश्किल नहीं है ना।
आप वहाँ जाकर एडजस्ट होना चाहते हैं, स्पेस अब मेरा इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंट ओपिनियन है। हम ये बात करते हैं कि एडजस्ट होना चाहिए, व्हाई नॉट टू एक्सेप्ट द वे वी आर, एक लड़के को लड़की को एक्सेप्ट करना द वे शी इज, और ये फ्लेक्सिबिलिटी बड़ी जरूरी होती है। अच्छा जी, कॉलर लेते फिर इसके ऊपर जरा तफसीलन बात करेंगे। मरियम है जी मुल्तान से। मरियम, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। बताइएगा क्या कहना चाहती हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि हाँ, आप लोगों ने टॉपिक बहुत अच्छा हाईलाइट किया हुआ है, और मेरा ये कहना है कि हम कह रहे हैं कि जी लड़कों को इशू होता है, पेरेंट्स उनसे गोल्ड लिखवा रहे होते हैं, प्रॉपर्टीज लिखवा रहे होते हैं, तो वाई नॉट के जहेज भी तो आप लोग ले रहे होते हैं ना। दोनों बातें गलत है। जहेज दोनों चीजें खत्म कर दें। आप अपनी बेटी को बोलें कि भाई हमारे घर जो बच्ची आ रही है वो जहेज ना लाए, 2 कपड़े हम देते हैं वो ही वो पहन कर आए, और हम भी अपनी तरफ से चीजें जो है वो खत्म कर देते हैं। तो मेरा ख्याल में माशरा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि मैं 2 बेटियां और 2 बेटों की माँ हूँ, और मैंने यही चीज सोची है कि जब भी वक्त आएगा तो इसी तरह से जो है बहुत प्यारी सोच, बहुत प्यारी सोच। और चूंकि ज़रा आपके घर में रहमत भी है और नेमत भी है, और आपने बड़ा अच्छा शेयर भी किया। और हर माँ बाप को ये सोचना चाहिए और करना भी इस तरीके से चाहिए कि जब बेटी की शादी करें तो कोई ऐसी डिमांड ना करें, और जब बेटे का रिश्ता तय करें तब भी ऐसी कोई डिमांड ना करें। जहेज और हक महर, ज़रा ये दोनों मामलात ऐसे हैं जो आपकी खानदानों को मिलाते नहीं बल्कि उसमें तकसीम पैदा करते बिल्कुल। लेकिन बेटा इसमें एक बार, मैं भी 2 बेटों की माँ हूँ और बेटी की भी माँ हूँ, और मैंने भी दोनों बेटों से की ससुराल से जहेज नहीं लिया, और मेरी एक बहू डॉक्टर है और एक हाउस वाइफ है। मैं समझती हूँ कि वो जो डॉक्टर है उसने इतना पढ़ा है, वो अपने मियाँ के साथ सारी उम्र के लिए एक मददगार बन के आ गई है, तो जहेज लाने की ज़रूरत ही नहीं थी। अब लेकिन मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लड़की वाले खुद, वैसे आपको बात मुझे कहनी चाहिए नहीं कहनी चाहिए, लड़की वाले पहले से खुद ही, चाहे वो अफोर्ड कर सकते हो ना करते, वो देख रहे होते हैं कि हमारे बेटी के जेठानी जो है वो इतना कुछ लेकर आई थी, तो इसका भी बेडरूम उसकी तरह ही सजा होना चाहिए। ये लड़की वाले खुद भी उनकी ये अच्छा खुद भी करते हैं। ये मैं यहाँ पे तो आपसे मैं मुत्तफिक जरूर होंगे इस बात पे, क्योंकि अक्सर हमने देखा है कि जो है वो लड़के वाले डिमांड नहीं कर रहे होते, इनफैक्ट वो मना कर रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लड़की वालों की तरफ से ये होता है कि हम अपनी खुशी से दे रहे हैं, या फिर आगे चल के क्या बात होगी, या बिल्कुल जेन्युइनली अगर मना भी कर रहे हैं का सामान तो देंगे, और जब बेडरूम का सामान देते हैं तो वो इतना लेविश और वो मुकाबलाबाजी में आ जाता है कि पहली वाली बहू उनकी ऐसा लाई थी तो मेरी बहू। ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज भी। कॉलर है हमारे साथ याहिया फ्रॉम कराची। याहिया, गुड मॉर्निंग, क्या कहना चाहेंगे? गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि माशाल्लाह बड़ा डिसेंटली प्रोग्राम आप कैरी करते हैं, और जो आपके गेस्ट को भी सलाम। मैं सबसे बड़ा इशू जो है ना मेरी नजर में इकोनॉमिकल फैक्टर आजकल के जमाने में बहुत बड़ा है। वो मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी आ रही है, प्लीज। मैं ये देखें, बात असल ये है ना मेरे भाई, इतनी महंगी हो गई हैं शादियां कि बेचारा लड़का और या लड़की के घर वाले पैसे जमा करते करते उनकी जानें निकल जाती हैं, उधार लेके शादी करनी पड़ती है। ये वक्त का तकाजा है कि हम शादियों को सिंप्लीफाई करें। हम जरूरी नहीं है कि 4-4 लाख के हॉल करें, 4-4 लाख रुपए के खाने करें। अगर आप यही पैसा बचा के बच्ची और बच्चे के लिए दे देते तो उसके आगे काम आता है। जो असल मसला है देखिए, अब बच्चा, एक लड़का पढ़ के निकल रहा है, ठीक है, वो तो बेचारा इसने पैसे लगाए माँ बाप ने सबको, वी इज गेटिंग जस्ट नाउ 30-35,000 उसकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 40,000 की। जब वो रिश्ते के लिए कहीं जाते हैं तो वो लड़का को कहा जाता है इसकी सैलरी अच्छी नहीं। जब वो ग्रूम होता है तो उसकी उम्र ज्यादा भी हो जाती है। तो हमें इन सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए मेरे भाई सिर्फ मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, शादियां सिंप्लीफाई करें, खुदा की कसम कई शादियां हो जाएंगी। याहिया, आपके शादी के वक्त प्रेशर था जो आज जिस प्रेशर की हम बात कर रहे हैं? मेरी शादी वक्त उस वक्त प्रेशर इतना नहीं था, और अगर था भी ना तो मसला ये कि वो उस वक्त इतने अखराजात होते नहीं थे, महंगाई इतनी नहीं थी। आज अगर दोनों बंदे काम नहीं करते, ये बात अहम है, तो अब हमें चेंज करना है। अब ये नहीं सोच सकते कि जी पहले भी तो होता था, अब हालात। प्लीज जो है ना शोबाजी से निकलें और एक हकीकत की तरफ आए और सिंप्लीफाई करें शादी को। इंशाल्लाह बहुत सारी शादियां हो जाएंगी। शोबाजी किसको कहा आपने? लाइटर नोट ऑफ कोर्स। क्या कह रहे? मैंने कहा शोबाजी, आपने लफ्ज इस्तेमाल किया। नहीं, शोबाजी इसलिए देखें अगर जिनके पास अल्लाह ने नवाजा है वो तो ठीक है, समझ में आती है। अगर मेरी औकात नहीं है, मैं सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए खर्चा कर रहा हूँ, तो मगर मैं खुद भी कर रहा हूँ, दैट इज वेरी रॉन्ग। बिल्कुल सही बात है। उनका मतलब ये था दिखावा तो शो करना बंद करें। जी डॉक्टर साहब, दिखावा तो है ना, जहाँ बात दिखावे की आ जाती है ना, फिर तो हम सब कुछ फूंक डालते हैं। वो घरों को सजावट से लेकर के और बहुत सारी डिशेस के खाने और ये और चौथी चाले और फिर मकलावा और फिर मकलावे में जोड़े दे रहे हैं। और
कभी मैं आपको एक बात बताऊं, अब वो ज़माना नहीं रहा है कि लड़के वाले लिस्टें लेके जाएं, आपस की बात है, क्योंकि लड़की भी माशाल्लाह पढ़ी लिखी होती है, लड़का भी पढ़ा लिखा होता है, आमतौर पर वो एक ही डिपार्टमेंट में जॉब भी कर रहे होते हैं, तो ऐसे अच्छे मैचेस हो जाते हैं आपस में। उसका क्या होता है कि अब वो ये तय करके चल रहे होते हैं कि हमने ज़िंदगी मिलकर गुजारनी है, कभी यहाँ से वहाँ अब लंबी लिस्टों की फहरिस्तें नहीं जाती हैं, ये तयशुदा बात है और ये हमें इस हकीकत को मान लेना चाहिए। निकल आए उधर से कि ये तो देखिए तब होता है जब आपकी पसंद की शादी है, तब तो लड़का लड़की ने चले आपस के मामला तकरीबन खुद तय कर लिए। हाँ बिल्कुल। लेकिन जब बात दूसरी है तब ज़रा मामला तब भी खानदान अब ऐसा अब भी ऐसा इतनी ज्यादा फहम फरासत लोगों में आ चुकी है, ग्राउंड रियलिटीज अरेंज मैरिजेस हो ही नहीं रही, हो रही हैं। अच्छा बल्कि अब तो जो बेटियां बेचारी यूनिवर्सिटी से आ जाती हैं ना, 2-4 साल गुजर जाते तो मैं कहती तो तुम वहाँ की कोई देख नहीं सकती थी क्या? अब तो ऐसा भी हो गया, माँ बाप भी ब्रॉड माइंडेड होकर, बेटा ये कोई बुरी बात नहीं है, जरा जिंदगी आपने गुजारने तो आपकी पसंद मैटर करती है। मैं कहना ये चाहती हूँ, वो तो अपने एक नया मौजू छेड़ दिया ना, मैं जो कहना चाहती हूँ वो ये कहना चाहती हूँ कि अब ऐसा हरगिज़ नहीं है कि कोई मशाता ये दरमियान में रिश्ता कराने वाली और लिस्ट लेकर आइए, अब ऐसा नहीं होता है। अब लोग हकीकत को मानने लगे हैं, उन्हें पता है कि इस हकीकत में लड़के वालों की भी कितने पानी में और हम भी कितने पानी में, तो जो कुछ होता है ना आजकल गिव एंड टेक के तौर पर नहीं होता, मोहब्बत के तौर पर ही होता है। और उसमें अगर आप कर्जा ले लेते अपनी बेटी को बहुत ज़्यादा आला सामान देने के लिए, तो लड़के वाले का कोई कसूर नहीं है। और अगर लड़के वाले सोने का सेट चढ़ाने के लिए कर्जा ले लेते हैं, तो आजकल तो मैचिंग ज्वेलरी का फैशन है। आजकल मैं नहीं समझती हूँ कि सोने के लिए लड़के वाले भी परेशान होते होंगे, लड़की वाले भी परेशान होते होंगे। अब ये बातें पुरानी हो गई हैं, बातें हो गई हैं कि आपस में पुरानी जरूर है, लेकिन आज सवाल अभी भी उठता है कितना सोना दिया या कितना सोना अब नहीं उठता ये सवाल, अब नहीं उठता, इसलिए कि अब तो सोना रीच में, अब जाहिर है कि एक सोना पहुंच में नहीं है बेटा, तो सोना बात तो सही है, बात तो सही है, लेकिन फिर भी अभी भी बहुत ज्यादा हमारे मुल्क की ऐसी तादाद है, ऐसा तबका जरूर मौजूद है जो कि वाकई देख रहा होता है। कॉलर हमारे साथ जी इफ्तिखार, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ्तिखार, क्या कहना चाहेंगे? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा मसला ये है कि मैं 3 बहुओं लेके आया हूँ, 3 बहुएं, और तीनों का जहेज मैंने नहीं लिया। अब चौथी का करने लगा हूँ तो वो पता क्या कह रहे हैं कि हमारी नाक नहीं रहती। मैंने कहा 2 कपड़ों में दो, मुझे 2 कपड़ों में मंजूर है। और मेरा घर के माशाल्लाह वो जब भी आते हैं मैं उनकी इज्जत भी बहुत करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, मगर वो कहते हैं हमारी इज्जत नहीं रहती। ये लोग जो लोग अपनी इज्जतों के लिए दूसरे घरों को बर्बाद करें, इनको कुछ समझ होनी चाहिए कि लड़के वाला कह रहा है कि मुझे 2 कपड़ों में दे दो, तो वो कहते हैं जी हमारा खानदान, ये एक नया अजीब सा कंसेप्ट है लोगों का। ये प्लीज जरा ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया इफ्तिखार साहब, कि ज़ाहिर है कि हम देखते भी हैं कि जिस तरह आपने खुद भी कहा कि आपने जहेज़ नहीं लिया, जो शादियां आपने बच्चों की, लेकिन अब जब शादी करने को आप आए तो वो लड़की वाले कहते हैं कि हम जहेज़ इसलिए देंगे कि हमारी इज्जत रह जाए। ये देखिए अब ये बात हमें समझनी चाहिए इस अंदाज से कि अच्छा अगर आप देना चाहते भी हैं और दे सकते भी हैं, आपकी ख्वाहिश भी, तब भी आप ये सोच के ना दें कि आपके उस देने से सोसाइटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और मैं आपको एक बात बताती हूँ, सोसाइटी में अब ये बातें इतनी ज़्यादा अहम नहीं रही हैं। सोसाइटी भी अब मैच्योर हो गई है, सोसाइटी के अंदर तालीम की बहुत ज़्यादा फरावानी हो गई है और इतनी ज़्यादा हकीकतें हमारे सामने आ गई हैं कि अब ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और कॉलर है जी, सॉरी आपको इंटरप्ट किया, हसीब है हमारे साथ गुजर खान। अस्सलाम वालेकुम हसीब, क्या कहना चाहेंगे? वालेकुम सलाम सर, मैं अभी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट हूँ। ओके। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ना जब लड़का लड़की आपस में लव मैरिज कर लेते हैं तो वहाँ पे उनको प्रॉब्लम आ जाती है, क्या जाता है कि ये पेरेंट्स की बात नहीं मानते या इनको इतना नॉलेज नहीं है। लेकिन अगर वो अरेंज मैरिज करें, अपने पेरेंट्स की मर्जी से करें, हो सकता है कि उनके आपस में मेंटल कैलिबर एक जैसा ना हो। हसीब मुझे तो ये लग रहा है कि आप पसंद की शादी करना चाहते हैं और पेरेंट्स मान नहीं रहे, मसला कुछ और है। नहीं, लेकिन मैं एक वैसे बात करूँ जो सोसाइटी में है कि अब जारी बात है वेस्टर्न कल्चर की तरफ भी जा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। तो जब वहाँ हसीब वैसे छोड़े, ये आपस की बात करते हैं, आप और मैं हम आपस की बात करते हैं। आप प्रेशर ले रहे हैं इस वक्त, अभी तो स्टूडेंट हैं आप, लेकिन वो रिश्ते वाला प्रेशर आपने लिया हुआ है। जारी बात है हमने भी सोसाइटी में रहना है तो हम इस चीज को नोटिस। क्या प्रेशर है हसीब, आपका प्रेशर इस वक्त क्या है कि डिग्री खत्म हो जाए, नौकरी मिल जाए, या और कोई प्रेशर भी है इस वक्त? हमें प्रेशर यहाँ पे ये है कि यहाँ पे ना मतलब कि अगर कोई पसंद की शादी कर ले तो जिस तरह आप करना चाहते हैं हसीब, फैमिली में वो सपोर्ट नहीं करते, लेकिन अगर आप पसंद की शादी करना चाहते हैं हसीब? जी मैं खुद करना चाहता हूँ। ठीक है, और आपको लगता है कि जब ये बात आप फैमिली से शेयर करेंगे या अगर आपने कर भी ली तो आपको प्रेशर फेस करना पड़ेगा? बहुत ज्यादा करना पड़ेगा।
अपनी फैमिली की तरफ से सिर्फ प्रेशर लगता है या कि आपको लगता है कि लड़की वाले भी नहीं मानेंगे? दोनों तरफ से होता है ना, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि ये पहले से आपस में कम्युनिकेशन में थे, तो ये न जाने क्या क्या करते रहे होंगे या क्या क्या इन्होंने किया। इस तरह के ना बहुत से सवाल आ जाते हैं कि इन्होंने इस्लामिक कल्चर बीच में ये ले आते हैं। तो हसीब, आपने इसके लिए क्या किया? आपने वैसे तो फैमिली में जो आपके करीब होता है आप उससे शेयर करते हैं, आपने इस मसले को हल करने के लिए क्या किया? मैंने कोशिश की है 2-3 इशारे देने की घर वालों को, लेकिन वो नहीं, मैं उससे अंदाजा हो गया कि ये मुश्किल काम है, बहुत मुश्किल लग रहा है। अच्छा, इस पर राय लेते हैं जी। आपने अब सुनना है कि आपके लिए इस मसले का हल डॉक्टर साहब के पास क्या है। देखें जी, हसीब हैं, पसंद करते हैं, किसी को शादी करना चाहते हैं, इशारे दिए हैं घर वालों को, घर वालों ने सीरियस लिया नहीं है। उनको लगता है कि मेरी फैमिली भी रेजिस्ट करेगी और जब लड़की के घर में मालूम होगा तो वो भी रेजिस्ट करेंगे कि नहीं जी ये हमारा कल्चर नहीं है पसंद की शादी वाला, तो रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। ये प्रेशर जो है हसीब फेस कर रहा है। अब आपने तो हसीब के केस को ऑनलाइन ला करके तो उस बेचारे का काम काफी बिगाड़ दिया है। मेरे ख्याल मैंने हल किया है। मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा हसीब के पेरेंट्स से भी कि उसकी बात सुने, जिंदगी हसीब ने गुजारनी है, क्योंकि हसीब ने इशारे दिए हैं। अभी हसीब की तो पिटाई होने वाली है, तय है आज घर में जाके। होना ये चाहिए, हसीब को बताऊं कि अपनी बहन को या भाभी को या अपनी किसी अच्छी क्लोज कज़न को बता दे और कहे कि जब आप रिश्ता देखने, लड़के ऐसे कहते हैं, जब आप रिश्ता देखने जाएं तो फलां को भी ज़रा देख लीजिएगा, ठीक है? नाम मत लो, इशारा मत लो, अपनी बहन को या भाभी को बता दो ताकि वो अम्मी अब्बू को तरह तरीके से बात करके बता दे कि अम्मी इस तरह मेरी एक जानने वाली है, उस लड़की को भी देख लेते हैं, ठीक है ना? ऐसे तो देखा जा सकता है। हसीब देख लें, आपको आइडिया दे रहे हैं हम लोग। केस आप खराब कर चुके हैं। आपकी अम्मी आपके अब्बू ये शो ना देख रहे हो, ये मशवरा से क्या पता उसने फर्जी नाम से कॉल की हो सकता है, यू नेवर नो। नहीं, ऐसे उसे कहीं परेशान ना हो, अल्लाह बेहतर करेगा। और इस तरह अपनी भाभी या बहन को अपने एतमाद में लेके कहो, वो अम्मी अब्बू के सामने ग्राउंड प्लेन करेंगे और दिखा देंगे कोई अब बेटा आज माँ बाप जो चाहते हैं हमारे बच्चे खुश रहें। यस, ऐसा नहीं है, अब माँ बाप के दरमियान में ध्यान में वो पुरानी बात नहीं रही है। अब माँ बाप चाहते हैं कि ऐसा हो, नस्ल आगे ज़िंदगी बच्चों ने गुजारनी है और माँ बाप कभी भी ज़ालिम समाज नहीं रहे। वो हमेशा जब भी रुकावट डालते हैं किसी फ़ायदे की वजह से ही डालते हैं। बिल्कुल। एक और कॉलर है, मियां अशरफ फ्रॉम लाहौर। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या पूछना है, कहना चाहेंगे? ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि शादियाँ नाकाम होने की रीज़न महंगाई है, ठीक है? अच्छा, हाँ, देखो 90 में मेरी शादी हुई थी, उस वक्त 34-35 रुपए किलो अपना था तोला सोना, ठीक है ना? तो 34,000 में आराम से 10 तोले सोना आ गया था मेरी शादी पे, ठीक है? अब इतनी महंगाई है कि अब 30,000 रुपया लड़का अगर सैलरी ले रहा है, लड़की 30,000, साथ में रेंट घर का हो 30,000 रुपया, 25 किराया हो, बिल हो, कहाँ से वो शादी कामयाब हो? ये तो देखें डॉक्टर साहब ने इसका बड़ा अच्छा हल बताया कि जो सोने की डिमांड है ना ये खत्म हो जानी चाहिए, सोने की बात नहीं होनी चाहिए। नहीं, हुकूमत को कोई शर्म चाहिए, महंगाई खत्म कर दें, घर नहीं चल रहे। अब देखो ना, उस वक्त 1 लाख रुपए 90-95 में 1 लाख में ठीक है शादी हो जाती। यानी वजारत शादी एक होनी चाहिए हुकूमत की तरफ से, शादी पॉलिसी आनी चाहिए, वजारत बराए शादी उमूर शादी, जो कि ये तय करे अच्छा शादी में खर्चा कितना होना चाहिए। हाँ, वैसे ये बड़ा एक अच्छा, वैसे देखिए इससे देखिए कितनी अच्छे आइडियाज भी आ जाते हैं। ये बड़ा जरूरी है ताकि लोगों को पता हो कि इससे ज्यादा वो नहीं ले सकते। मैं माजरत चाहूंगी, अगर आपने वजारत बना दी ना, फिर जिस तरह बाकी वजारतें कुछ नहीं कर रही, यहाँ भी कुछ नहीं होगा। ये भी ये अब एक और मसला है। इस काम को कीजिए, ये अब एक और मसला है और वजारत को रहने दीजिए। बिल्कुल, ऐसी घर में रखिए, सोसाइटियां बनती रहेंगी और बेचारे हसीब जैसे लोग वहीं दुबके रहेंगे। अब क्या करें? क्योंकि वैसे भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो काम आपने नहीं करना उसके लिए कमेटी बना दो, उसकी कमेटी बना दो, उसकी वजारत बना दो। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद है कि आपस में अफामत तफहीम से कर लें। और अब सोना जो है ना वो इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, मैं दोबारा बता रही हूँ। बिल्कुल सही, सोना अब रीच में नहीं रहा है। अब तो सोना दुल्हन को अंगूठी तो ना दे ना मांगे, मसला हल ना मांगो ना दो, के मुताबिक सादगी से शादी करें, बस ये बड़ा जरूरी है। प्रेशर लेने की जरूरत नहीं है, जरूर दें, चुपके से दें, दिखावे के लिए ना दें, मोहब्बत में दें। बिल्कुल सही, प्रेशर लेना छोड़ दें जी। एक और बात जी, मैं आपसे वक्त खत्म होने से पहले मैं एक बहुत आपको बात बताना चाहती हूँ प्रेशर के हवाले से, कि एक फैमिली है जिनकी 2 बेटियाँ हैं, दोनों पढ़ी लिखी हैं, हाईली क्वालिफाइड हैं, अच्छी जॉब्स करती हैं। अब उनका कोई बेटा नहीं है, तो अब वो माँ बाप जो हैं वो हर वक्त इस तको में है कि कोई ऐसा लड़का मिले जो घर दामाद हो। अब देखें, बुरी बात नहीं है, कोई बात नहीं, एक बेटे दामाद भी तो बेटे बन सकते हैं ना। अब होना तो ये चाहिए कि वो किसी ऐसे लड़के को फैमिली में से या फैमिली के बाहर से जो बहुत ज़्यादा सेटल्ड नहीं है उसको ले लें, उससे रिश्ता तय कर दे अपनी बेटियों का और उसको अपने। ये अच्छी आपने राय दी है ऐसे किसी फैमिली में। वक्त खत्म हो गया, मैं जरूर इस पर बात करता, वरना इंशाल्लाह किसी और दिन से। बहुत शुक्रिया साथ मौजूद